Yeah, now actually what we thought today, we'll have some questions and answer session today, Q&A. If you have any questions, particularly from what we said, the first two chapters of Book of Acts, you can straight ask your questions. तो आज का जो सत्र है वो मुख्य तौर पे प्रश्न और उत्तर का सत्र है और पिछले 4 सत्र में 2 अध्यायों का अध्ययन किया गया है और इन अध्यायों से आधारित अगर आपके पास कोई सवाल है तो उन सवालों को आज आप रख सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। Yeah, not only your questions. Suppose if you want to share anything that that you are touched, your heart is enlightened by. I think last 2-3 times you were texting in the chat box. This point has really touched something like that. That also you can share for the edification of, the rest of the people. You can share what you have learned. Also, that's also possible. केवल सवाल ही नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस अध्ययन के द्वारा आपके अंदर कोई प्रकाशन प्राप्त हुआ है, अगर आपको या आपके कुछ नए विचार हैं इस अध्ययन से संबंधित, जिस प्रकार मैं देख रहा था अध्ययन के दौरान कुछ लोग चैट बॉक्स में अपने टिप्पणियों को डाल रहे थे, तो आज वो समय है कि आप अपने प्रकाशन को, या अगर पवित्र आत्मा आपसे भी कुछ विशेष बात किया है इस अध्ययन के दौरान, तो उसको भी आप यहाँ पे साझा कर सकते हैं। Yeah, you can also share in your own language, Hindi. That's not a problem. Maybe Saurabh can tell me or share with me in English. That's also fine. और आप अपनी भाषा में, हिंदी में अपने विचारों को रख सकते हैं और फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जा सकेगा। तो आप अगर हिंदी में बोल सकते हैं तो आप जरूर हिंदी में ही बोलें और अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। Yes. जय मसीह की। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं बहुत दिनों से ये पूछना चाहती थी कि क्या दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 11वां वचन में ऐसा लिखा है, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े काम की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करने के कहा, वे तो नई मदिरा के नशा में कर चुके। और इसका 7 और 8 वचन भी मैं पढ़ना चाहती हूँ कि वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखिए ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? और इस वचन में मेरा डाउट ये है कि जैसा मान लीजिए आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं अपने भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ, तो भी जैसा कोई दूसरा अन्य लैंग्वेज वाले को भी क्या मेरी अपनी भाषा उन लोग को उनकी भाषा जैसे समझ में आए उस समय? मतलब मैं अगर हिंदी में प्रार्थना कर रही थी, कोई तमिलियन वहां बैठे हैं, तो क्या उनको तमिल में वो भाषा सुनाई दे रहे हैं उस टाइप का? ये मेरा, जब सबको ये समझ में आ गया क्या, ये मेरा थोड़ा डाउट है। Sir, should I repeat the question in English? Yeah, please. I need to because I don't know Hindi. Yes, definitely. I will be doing it. Her question is, thank you, sister हेमलता, आपके सवाल के लिए। तो मैं आपका सवाल को अनुवाद कर रहा हूँ सर को इंग्लिश में। Her question is from Acts chapter 2, verses 7 to 13. 11, 12 and 13, she is asking, now she has read all the sections 7 to 13, and Okay. her basic question is, when she is praying, suppose she is praying in English, will the participants, suppose the participants or a listener is a Tamilian, so when she is praying in Hindi, will a Tamilian person will receive her words in Tamil language, or will he be able to follow the same words in Tamil? So this is her question. Yeah, no, no. Actually, they all spoke different languages. There are at least 16 people mentioned over there from different places.
So different people, for example, to put it in our terms, as you said, they're all Galileans, okay? They were all in Jerusalem, they were all Jews, but they spoke Tamil, they spoke Malayalam, they spoke Hindi, they spoke Marathi, they spoke Gujarati, okay, they spoke Punjabi. So different people spoke different languages, not speaking one language and it is being translated into other languages. It was not the case. They all spoke different languages, which they did not learn, which they did not, go to school and learn. But the Holy Spirit of God gave them those different languages. सिस्टर हेमलता, जैसा Sir. सर ने बताया जी कि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जब उस आयत को, जिस आयत को आपने पढ़ा है और जिस आयत के आधार पे आपने सवाल पूछा है, उस आयत में करीब 16 अलग अलग स्थानों से लोग एकत्रित थे और करीब 16 भाषा में लोग जो अन्य भाषा बोली जा रही थी उसको सुन पा रहे थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग अपने अपने देश का उदाहरण ले, तो जब अन्य भाषा गलीली बोल रहे थे, वो सब गलील से ही थे, और जब वो बोल रहे थे तो कोई मराठी में बोलने लगा, कोई पंजाबी में बोलने लगा, कोई तमिलियन में बोलने लगा। इस प्रकार से जो वो बोल रहे थे वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं थी, एक ही भाषा नहीं थी जिसको कि अलग अलग लोग अपनी भाषा में सुन रहे थे, लेकिन वो लोग अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने लगे। Thank you. जी सर, थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you. To refine this, I have a little bit another question so that it will be much clear, I hope. Thing is that, like what sister is asking, there is two understandings. In last our Bible study also, the other Bible study also, the same question has been raised. That some people are telling, it seems like they have spoke in their own language, but the person who is hearing, if I am speaking in Telugu, you are it is going to you in Chhattisgarhi language. That means Chhattisgarhi person is hearing in his own language, but I am speaking in Telugu or I am speaking in Hindi. So it is like that it is being interpreted. So what language I know, I am speaking, but the hearing person is hearing in his language. This slide is a wrong interpretation also there. So might be that is also sister's question. Yeah. जी सर, आप सही कह रही है, ये मेरा क्वेश्चन है। Yeah, exactly. I think that's what Hemalata was thinking. I mean, that's what she heard from different people. When I speak one language, different people are hearing different languages. So that's not the case. That's not what had happened here in Acts 2nd chapter. Everybody spoke different language. ओके सर, थैंक यू। Okay, ma. Thank you. Yes, Reverend Ram Singh. पास्टर जी, आई रिक्वेस्ट प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो भी डिस्कशन चल रहा था, अभी 7 से लेकर के हम लोगों ने 13 तक देखा है। भैया सौरभ? यस जी ब्रदर, मैं सुन रहे ना? थोड़ा सा कम करना है इस चीज। तो मैं यहाँ पे जो उसका दूसरा का जो चौथा आयत है, इसी से यानी संबंधित है, लेकिन एक बात मुझे समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है। वहां पर सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। इसे अभी आपने शेयर कर रहे थे कि हमारे इंडिया में कई भाषा है, तमिलियन है, मलयालम है और उड़िया भाषा है और छत्तीसगढ़िया भाषा है। मतलब कई जगह से ये बातें हो रही है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया उनके पास, तो वो अन्य भाषा लोग कैसे समझ रहे थे वहां पे, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे शेयर करना है थोड़ा। Brother is asking one question. Thank you, Brother Ram Singh. Brother is asking one question. Yeah. Based on Acts 2 verse 4,
it says they all were filled with Holy Spirit, and as the Spirit led them, they started to speak in tongues. Yes. So, question which brother is raising, or enlightenment which he wants is, suppose in India also there are different languages. So there are every region has got their their own languages. So how those who were speaking in tongues got the understanding, how they got the knowledge to about those languages, other languages. Yeah, that's what exactly is verse 4 is saying. See, I don't know Tamil, I don't know Malayalam, I don't know even Chhattisgarhi. But when the Spirit of God came upon me, when they were filled with the Holy Spirit, they began to speak other tongues as the Spirit gave them utterance. So it is ब्रदर the, आपका क्वेश्चन मैं सही इंटरप्रेट किया? या ठीक है ब्रदर, ठीक है। आप यही पूछ रहे थे? हाँ, आप यही पूछ रहे थे ना कि जब वो लोग उस भाषा को नहीं जानते थे तो उस भाषा की समझ उन्हें, हेलो जी बिल्कुल जी, yes sir, he was asking the same question. When they were not knowing about the language or the language, then how come they could understand it, or how come they could comprehend it and then speak it? So सर ने जो उत्तर दिया वो आपको समझ में आया क्या, राम सिंह ब्रदर? नहीं, आप उसको शेयर करिए थोड़ा सा हिंदी में। जी या तो सर ने बोला कि ये चीज वास्तविक है कि अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग प्रांत के लोग वहां पे एकत्रित हुए और भाषाओं में भिन्नता थी, लेकिन जो मुख्य बात है वो है जब वो पवित्र आत्मा में आए, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया, तब वे लोग क्या है उन भाषाओं को बोलने लगे, है ना। तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, जिसके सामर्थ्य के प्रभाव से वो लोग जिस भाषा की उनको समझ नहीं थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने से उस भाषा को भी वो लोग बोलने लगे। ये सर, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. So basically, number one, it is the work of the Spirit of God. It is the power of the Spirit of God. It is the Spirit of God who gave them that knowledge or the ability to speak and all. That's the first thing that we need to know. Second thing, the most important thing that time also I mentioned. Just a minute, sir. Please. Let me translate, sir. Yeah. Otherwise, I will miss because these points has to be made very clear. Okay. Otherwise, I will miss some or other thing. I'm sorry for that. No, please. सर ने जो पहला बिंदु बताया वो है कि इस चीज को हम लोगों को समझना इस तरीके से है कि ये जो भाषाओं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस भाषा को वो नहीं जानते थे वो कैसे बोलने लगे, है ना, और अलग अलग भाषाएं कहाँ से आई, है ना, इसी पे आधारित सवाल है राम सिंह जी का भी और हेमलता जी का भी। तो इसमें जो पहली बात सर उत्तर के रूप में दे रहे हैं वो ये है कि ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, और ये पवित्र आत्मा के दान की यही विशेषता है कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया तो ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो पहली चीज जो बुनियादी कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यस सर, प्लीज सर। Yeah. So basically, we need to understand ability to speak in different languages is one thing. That was a new thing for them. But most important that we need to understand is they were given that different languages so that they can give the gospel to other people. That was a witnessing activity, not actually, to tell you the truth, the most important thing is not speaking in different languages. The most important thing is giving the gospel in native languages. They got that ability to speak in different languages so that they could share the gospel. Sharing gospel, witnessing, speaking about Jesus Christ is more important, but language is only one thing that was given to them. The emphasis is on witnessing. That's what we need to understand. So they were given that language so that जो दूसरा महत्वपूर्ण, yeah, go ahead. आवाज नहीं आ रही। ओके
जी। जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करने से हुआ वो प्रमुख तौर पे गवाह या गवाही देने के विषय में हुआ। सुसमाचार का प्रचार जो है वो इस पहलू में महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो लोग कितनी प्रकार की भाषा बोलने लगे या क्या बोलने लगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब उन्हें वो सामर्थ मिली, पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली, और जब वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे तो वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर उतरा और जब वे अन्य भाषा बोलने लगे तो जो महत्वपूर्ण विषय वहां पे है, जो महत्वपूर्ण पहलू है कि वो लोग अन्य अन्य भाषा में, विभिन्न भाषाओं में परमेश्वर के गवाह बन गए। और ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि विभिन्न भाषाओं में परमेश्वर के लिए लोग गवाही दें या परमेश्वर के गवाह बने। Brother, finished, brother. Clarify here, brother. Just I think your signal got stuck somewhere. Saurabh, brother. Hello, yes, brother. Yeah, Saurav, network Hello. is low. Okay. जी, आप सौरभ ब्रदर आप Yes, वीडियो sir. थोड़ा देर बंद कीजिए, देन आई थिंक नेटवर्क। Okay, can we try now? Yeah, okay. Yes, please. राम सिंह ब्रदर, आपका सवाल क्लैरिफाई हुआ? नहीं है तो फिर से। हाँ, नहीं वो तो मुझे क्लियर हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक बात और, मैं तो इसको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर रहा था कि जैसे अभी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जैसे भी सौरभ भैया ने अभी ट्रांसलेट करके अभी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या हम इसमें भी हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हम मांग बोल सकते हैं? जो भी टॉकिंग चल रही है, हमारे साथ में पास्टर मोसेस सर हैं और भैया सौरभ जी हैं, जो भी ट्रांसलेट करके अभी हम लोगों को बता रहे हैं, तो ये भी पवित्र आत्मा का क्या काम है ना? क्या हम अन्य भाषा को हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी अन्य भाषा में हम लोग सीख रहे हैं? Sir, he's relating, brother is asking a question, or he's further adding into it. He's saying that what is happening now, like you speaking in English, then I'm translating it Hindi, and audience are listening or understanding it in Hindi. So is it also a work of Holy Spirit, or does it has got a similarity with what has happened in Acts of the Apostle, like in that book? Yeah. See, one thing, as I said, that was the first time the Holy Spirit came upon everybody at one time. It's the beginning of new era. That's the first thing that we need to understand. And, to mark. तो जो सबसे Yes, go ahead. यस जो सबसे पहली बात है कि ये पहली बार हुआ जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा। पवित्र आत्मा के कार्य का जो युग है उसका शुरुआत जो है हम देखते हैं उस दिन से प्रारंभ हुआ, है ना। सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान रखना है कि ये पवित्र आत्मा के युग का शुरुआत था, पहला दिन था। यस। So then everybody understood, because of the Spirit of God, because of the arrival of the Spirit of God, because of the Pentecost, okay, now Spirit of God was giving them that ability to speak in different languages, or the Spirit of God was giving them ability to communicate the gospel in their own languages. So it was the beginning of the church period, or the Holy Spirit period. So that was the reason why the talents were exhibited. The exhibition of the talents and the arrival of the Holy Spirit was very clearly evident
the big thing that had तो happened. जो जैसा मैंने बताया कि ये पवित्र आत्मा के युग का शुरुआत था और पहली बार था जब पवित्र आत्मा की सामर्थ इस प्रकार से एक झुंड पर उतरी और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर में उतरा तो जितने लोग वहां पे उपस्थित थे उनको वो इस सामर्थ से भर गए कि वो परमेश्वर के गवाह बनने लगे, वो परमेश्वर के गवाह बन जाएं और परमेश्वर के किए गए कार्यों की बड़ाई करने लगे। तो ये जब पहली बार पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा तो पवित्र आत्मा का ये दान या वरदान उन लोगों को प्राप्त हुआ कि वो लोग अलग अलग भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की गवाही देने लगे। और चूंकि ये पहली बार था इसीलिए पवित्र आत्मा के इस कार्य को या पवित्र आत्मा के इस पवित्र आत्मा के इस विस्फोट को हम लोग इस तौर पे देख सकते हैं कि अचानक से लोग अलग अलग भाषा में परमेश्वर की बड़ाई उसकी गाने लगे। Yeah, to understand even better, we will also read verse 3. Verse 3 tells us, and the divided tongues of fire appeared to them and rested on each one of them. So that was also another sign that they all received the Holy Spirit. So in order to know that the Spirit of God came upon them, these things happened. The tongues of fire they saw, it rested upon them, and they were all started speaking. So these are all the few activities that has taken place in order to know that the Spirit was with them, the Spirit came upon them, only to make it evident. और तीसरे पद को भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, है ना। तो ये भी एक प्रमाण है जो इस बात को बताता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उन लोगों पर उतरी, है ना। ये इस बात का सबूत है। और पवित्र आत्मा के सामर्थ के उतरने का जो सबूत या जो सत्य हम लोग देखते हैं वो वचन के आधार पे है और वो चिन्ह इस प्रकार से है कि लोगों की आग की सी जीभें फटने लगी और पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर आकर ठहरने लगी। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है और इस प्रकार की कुछ क्रियाएं जो है हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा उतरा तो इस प्रकार की क्रियाएं उन लोगों के मध्य में होने लगा। See, for example, let me to make us understand it better, let me add one more thing. So today we are seeing, for example, few people speaking in tongues, let us say example. But are we seeing fire coming upon people and resting upon people? We are not seeing anywhere. That's not happening. So only there, and the Spirit of God was coming upon them, it happened like that. Okay, that's how we need to understand. तो एक उदाहरण हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं आज के समय में जब कोई पवित्र अन्य भाषा बोलता है तो क्या आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई देती हैं या इस प्रकार से आत्मा की सामर्थ्य जो है वो लोगों के ऊपर आकर ठहरती हुई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जब उस युग में पहली बार पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार के चिन्ह या इस प्रकार की क्रियाएं जो है पवित्र आत्मा के उतरने की वहां पे उस समय हम पढ़ते हैं और उन चीजों को पाते हैं वहां पे। So now today what is happening is inside, when I am accepting the Lord Jesus Christ, the inside the Spirit of God is working within me, that making me convinced that I am a sinner, I need the Savior. So inside I am accepting Christ, outside I am taking water baptism. So these are the two sides that are happening today. Okay, but that day that's what had happened, because it happened first time in order to make everybody understand the work of the Spirit that has taken place. तो आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में एक व्यक्ति अपने मन में पश्चाताप कर रहा है, अंगीकार कर रहा है और स्वीकार कर रहा है कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। ये वो अपने मन में करता है और बाहरी रूप में वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है। तो आज के युग में ये दो चीजें हो रही हैं पवित्र आत्मा के कार्य के रूप में, पवित्र आत्मा के कार्य के क्रियाओं के रूप में। लेकिन जब पहली बार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा था तो उस प्रकार की क्रियाएं हो रही थी, आग की सी जीभें फटती हुई और सामर्थ्य लोगों के ऊपर में ठहरती हुई दिखाई दे रही थी। तो वो चूंकि पवित्र आत्मा का प्रथम सामर्थ्य का उतरना था, इसीलिए उस प्रकार की क्रियाएं हुई
और आज के युग में हम देखते हैं कि वो एक अलग रूप ले चुका है, और वो पहले एक व्यक्ति के मन को बदलता है और उसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति जो है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है। Now, I will explain. I'll give you 2 more steps how the Spirit of God came upon people. Now, Just here, small, just to throw some light on what Brother Ram Singh has asked, Anna, just to Yeah. give much clearly. Exactly what he is asking is that now you are speaking in English and he is speaking in Hindi. So, but the case what explained in Acts, that you know in English, but the people there, they don't know English, but they are speaking English. That is the case. I mean, that's what he's asking. So Okay. whether this what you are speaking in English and they are understanding in Hindi, is it that can we call this as talking in tongues? That's what I think he's asking. okay. So, can you clarify with him? Is it what he's asking? Is it that what? Yes, sir. This was his the later part of his questions section. But Okay. that is not Acts the same. Yeah, that was different. So, would you like to answer this particular section also, sir? Yeah, it's clear, no? And there it is totally different. When the people of Galilee, I mean those 120 believers, when they spoke in different languages, they never knew that language earlier, like how I knew English earlier. So they never knew that language earlier. First time they were speaking, and they were given by the Spirit of God that ability to speak. That was totally different. Exactly. तो राम सिंह ब्रदर, जो आपने सवाल पूछा कि अभी जो हम जैसे सर इंग्लिश में बोल रहे हैं और मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूँ और वो सर की बात जो है आप तक हिंदी में पहुंच रही है, ये एक अलग संदर्भ है। लेकिन जब उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा था, तो वो भाषाएं जो वो बोल रहे थे, जिन भाषाओं को वो बोल रहे थे, वो उनकी सीखी हुई भाषाएं नहीं थी। वो पूर्णतः पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के प्रभाव के कारण से वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वो केवल और केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही था। आज जो हो रहा है ये एक प्रक्रिया है, ये एक सीखी हुई प्रक्रिया है। इसकी तुलना हम जो उस दिन हुआ था उसके साथ में नहीं कर सकते, और ये नहीं बोल सकते कि आज जो हो रहा है, जो आज हम इस सत्र के दौरान कर रहे हैं और वो उस दिन जो हुआ, दोनों समान नहीं है। जी जी जी, वो तो सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। Thanks. लेकिन अभी एक और बातें हैं सौरभ भैया। आज के समय में अभी एक भाषा अभी आया हुआ है बीच में, तो कभी कभी जो अन्य बड़े जो प्रचारक या फिर जो छोटे भी सीख करके उसी तरीके से थोड़ा सा कुछ ऐसे भी भाषा में बात करते हैं, जैसे हिब्रू भाषा में बात करते हैं। तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं फिर? So brother is asking, Yeah. yes, brother is, जी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं समझ गया आपका सवाल जी। Brother is asking that nowadays he is saying it has become, it seems to be a fashion that some of the preachers, whether senior preachers or young evangelists, they try to speak in tongues in public or during preaching. Sometimes they speak, their tongues look like they speak Hebrew. It resembles with Hebrew. So when we hear those words or those tongues in public during preaching or in general, so how do we do, or how do we deal with those situations, or how do we understand those things? Thank you. That was a good thing. That was a practical question. So that's what we need to understand. See, here in Acts 2nd chapter, we see that Jews, first time, they received the Spirit and they exhibited this tongues. And again, the Samaritans in 8th chapter, gospel was given to them. They also received the Spirit. And Acts 10, Cornelius and family, they're purely Gentiles. They were also given the Spirit of God. So step by step, because they did not know Samaritans or Gentiles, they never knew that Spirit of God was there, came into the world. So step by step, all these three groups of people received,
the Spirit of God. You just tell this point, Saurabh. Next, I have one more point. यस यस ब्रदर, आपका जो सवाल है वो बहुत ही प्रायोगिक है और अच्छा है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा प्रथम युग में उतरा पिंतेकुस्त के दिन में, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 120 लोगों के ऊपर में उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। फिर 8वें अध्याय में हम देखते हैं सामरिया में किस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। फिर हम देखते हैं 10वें अध्याय में भी कि कुरनेलियुस के घर में पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा और वो सामर्थ से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम देखते हैं अलग अलग समय में पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो एक एक क्रमबद्ध तरीके से एक एक चरण में अलग अलग स्थानों में उतरा और लोग आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये पहला बिंदु है। जी So now every group of people, Jews first, Samaritans and Gentiles. Then when we go to Romans and Corinthians, Paul clearly explains about this speaking in tongues. He gives the clarity saying, you see now, as far as speaking in tongues is concerned, that is for personal, private, for the edification of the person, and particularly not in public. And even if you speak in public, there must be an interpreter, the one who speaks speaks interpretation. Okay. Now, to Reverend Ram Singh's question, some elderly speakers or even whoever it is speaking in things and looks like Hebrew, somehow we cannot certify or we cannot ascertain what they are doing. We don't know whether that language is existing or not. We are not very sure because none of us can understand what they are speaking. So that's what we need to be careful. Even let them be senior preachers or junior preachers. No issue there. You know, that's what, let's be careful. जो दूसरा बिंदु है, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हमने देखा किस प्रकार से पवित्र आत्मा यरूशलेम में लोगों को सामर्थ से भरता है, फिर सामरिया में भरता है, फिर अन्य जाति के घर में भरता है ना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के कार्यों का विस्तार जो है वो किस प्रकार से होता है, जो कि हम रोमियो की पत्री और कुरिन्थियों की पत्रियों में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा के सामर्थ का कार्य होने लगा चेलों के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा। फिर इन्हीं बातों को जब ये पौलुस तक पहुंचता है और जब पौलुस इन बातों का सामना करता है, जब पौलुस के सामने ये बातें आती हैं अन्य भाषा से संबंधित, तो हम देखते हैं कि पौलुस अपनी पत्रियों में स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब एक व्यक्ति भरता है और जब वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगता है, तो ये अन्य भाषा बोलना एक व्यक्तिगत विषय है। एक व्यक्ति को इसे एकांत में या जब वो अकेले प्रार्थना कर रहा हो तब बोलना चाहिए। और ये अन्य भाषा जो है एक व्यक्ति के स्वयं के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है। और तीसरी बात कि अगर एक व्यक्ति अन्य अन्य भाषा समूह में या पब्लिक में या आराधनालय में बोलता है तो उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। तो पौलुस इन तीन बातों के द्वारा स्पष्ट करता है और इस संदेह को या इस असमंजसता को दूर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पवित्र आत्मा बोलने वाला व्यक्तिगत रूप में बोले, अपने खुद की उन्नति करने के लिए बोले, और अगर समूह में बोल रहा है तो उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। तो ये है वो ऑर्डर जिसमें चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब जो आपका सवाल है वो ये है कि कई बार चाहे वो सीनियर पास्टर हो या नए पासवान हो, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। तो उसका प्रमाणीकरण मैं और आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वचन जो बोलता है कि अगर वो सामूहिक रूप से बोला जा रहा है या समूह में बोला जा रहा है तो उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। तो कई बार उत्तेजना से भरकर भी पासवान इन बातों को बोलते हैं, अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, या कई लोग समूह में अगर अन्य भाषा बोल रहे हैं और उसका अगर अनुवाद नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं या वो क्या बोल रहे हैं। इस बात का निष्कर्ष मैं और आप नहीं निकाल सकते हैं और उन बातों को हमें यूं ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भाषा जो वो बोल रहे हैं वो प्रमाणित नहीं है, उसका अनुवाद किया हुआ नहीं है। Yeah, one more thing I want to add here before taking another question. Here at Pentecost, speaking in different languages and everybody understanding it,
and everybody was praising God, we need to look at it in contrast with what had happened at Tower of Babel in Genesis 11 chapter. So in Genesis 11 chapter, that was a curse, that was a judgment, that was a confusion. People were different, speaking different languages. Nobody understood what other person was speaking. One person was going this side, other person was going that side, and confusion. There was a chaos, confusion, judgment, and curse of God at Tower of Babel. Here, it is just opposite to that, contrast to that. At Pentecost, everybody is speaking understanding. They were understanding what other person is speaking. They were all praising God. So they're all coming together, unifying, unitedly praising God. So what has happened at Tower of Babel as a judgment, now it became a blessing. It is a unity, uniformity. There is a harmony and all that. Okay, so that is how we need to look at it. Two events, Tower of Babel and the Pentecost, two contrast events. तो पेंतेकुस्त के दिन में जब अन्य अन्य भाषा लोग बोलने लगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, तो इस बात को हम लोग और बेहतर समझ सकते हैं जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसमें बाबुल के गुम्मट के विषय में जब हम पढ़ते हैं, जब वहां पे लोग उस गुम्मट का निर्माण करने लगे तो परमेश्वर ने वहां पे उन लोगों को श्रापित किया, परमेश्वर का दंड उनके ऊपर में आया और वो फिर अलग अलग भाषा बोलने लगे और उनकी भाषा वो खुद एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। और हम जानते हैं कि वो घटना जो है वो भाषाओं में गड़बड़ी आने की एक घटना हुई, जहां लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए, उनके अंदर में एक मत खत्म हो गया, उनके अंदर में एकता खत्म हो गई, उनकी सोच में भिन्नताएं आ गई। तो जब परमेश्वर का दंड उनके ऊपर में आया तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाषाओं में गड़बड़ी आ गई और कौन क्या बोल रहा है कोई नहीं समझ पाया। लेकिन पिंतेकुस्त के दिन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा की आशीष लोगों के ऊपर में उतरती है, परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के ऊपर में उतरती है और जब पवित्र आत्मा उनके अंदर में आ गया तो वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने तो लगे, लेकिन सब परमेश्वर की बड़ाई को जितने लोग सुन रहे थे उनको सबको समझ में आ रहा था कि वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। तो भलाई भाषाएं विभिन्न थी, लेकिन सबको एक चीज जरूर समझ में आ रही थी, वो थी कि ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो पिंतेकुस्त के दिन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष उतरती है, परमेश्वर की जो सामर्थ है वो लोगों के ऊपर में उतरती है और लोग है उनके अंदर में एक एकता आ जाती है। इसीलिए जो कुछ भी वो बोलते हैं वो सब लोग अन्य अन्य भाषा में सुन तो रहे हैं, लेकिन सब यही समझ रहे हैं कि हाँ ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के दिए गए पवित्र आत्मा के सामर्थ को समझ सकते हैं ना। करेक्ट ब्रदर हमारा बीच में सिस्टर निधि है, वो निधि फिलिप है। Nidhi gave one text. What is that? What does it mean? सिस्टर आप पूछ सकता है तो अनम्यूट करके पूछ सके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Yeah, is it clear? Ram Singh? थैंक यू सो मच सर। Yeah, good. Praise the Lord. यस Yeah. बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सिस्टर। हेलो। Yeah, Nidhi, what is that you have texted here? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पेंटिकोस्ट का मीनिंग समझना है, मतलब और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सिस्टर निधि, मैं आपका बात नहीं समझ पा रहा हूँ। सिस्टर निधि, आपका आवाज कट के आ रहा है। इज इट ओनली दैट आई एम नॉट एबल टू हियर हर और No, we are able to hear, but she had already texted here. She put a text. तो क्या अगर हम ग्रुप में प्रेयर कर Yes, I read that. तो सिस्टर निधि, अगर आपका वही सवाल है तो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ ब्रदर को। पेंटिकोस्ट का मीनिंग भी पूछ रही हैं, पेंटिकोस्ट का मीनिंग। Oh, you जी, want जी, the meaning? Okay, Okay, पिछले हफ्ते तो बात हुई। yeah, meaning is 50 days, 50th day, 50. Pente is Panch, 5. So 50th day from the Lord's resurrection. That is how we need to count it. मैसेज को क्लियर कीजिए, वो मैसेज। Yes. Brother C is asking one question prior to Pentecost. He asked one question
that if we are in a group, so should we speak in tongues, irrespective of there is a translation or not? Okay, I think we better read what is there in Corinthians. Then she will get the clarity. Instead of we answering her from our own thing, better go to text. Better go. Let us read what is written in the Bible, and let the I think Bible. I have got a poor network today. Yeah, no problem. Hello. Yes. Shall we read? Shall we turn to 1 Corinthians chapter 12? Hello. Yeah, you're able to hear me? Yes, sir. I can hear you now. Yes. Yes, sir. Can you repeat the answer once again? I missed totally that part. Yeah, 1 Corinthians chapter 12. आवाज बहुत कम आ रही है। Yes. So she said something, no? कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या बीच में? सिस्टर निधि, आपका आवाज मतलब सिग्नल वीक है, नहीं सुन पा रहे, थोड़ा मैसेज लिख लीजिए सो दैट सवाल जवाब उत्तर दे सकता है उनके लिए। Yes, sir. Please continue, sir. 1 Corinthians chapter 12. Chapter 12. Let us read. I think there are many verses. Maybe here under verse 10. You first read verse 10. 1 Corinthians chapter 12, verse 10. You read, Saurabh. फिर किसी को सामर्थ्य के कार्य की शक्ति है, नबूत किसी को महासभा में किसी को दिए जाते हैं। सौरभ का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? Okay, sister. You read, no? Otherwise, Siva, Yes. can you read? Yes. Yeah, please, Yes, please. yes. फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। Okay. Also, please read verse 31. 30 and 31. Okay. 30 and 31. Yes. क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? Yeah. तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। Yes, sir. Yes. Then let us read one more verse. Yes. 14th chapter, same. 1 Corinthians chapter verse sir. 14. Yes, sir. Chapter 14 and 15 and 16 verses. Yes. अतः हमें क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। 15 and 16 And verse. 17 also. 17. तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। Okay. So here Paul is explaining very clearly. See, it is given to some people, not to all people. That's number one we need to understand. It's not for everybody. It is for some. Like how some are prophesying and some are apostles, some are evangelists. Like that, this gift is also given to some people. Number one, not for all. Secondly, So, sir, just a minute, sir. Let me.
Yeah, please. सिस्टर निधि, आपका उत्तर जो है वो सर दे रहे हैं। जो पहली चीज है वो ये है कि ये जो पवित्र आत्मा में अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान है, ये हर एक को नहीं दिया गया, ये कुछ लोगों को दिया गया। जिस प्रकार से भविष्यवाणी करने का वरदान है ना, वो कुछ विशेष लोगों को या कुछ लोगों को प्राप्त होता है, वैसे ही अन्य अन्य भाषा बोलने का जो वरदान है, ये कुछ लोगों को प्राप्त हुआ। ये पहली चीज है। दूसरी बात जो है वो सर बता रहे हैं। यस सर। Yeah. Now here in the 14th chapter, he is saying, it is for the edification of the people. Other people should be able to say Amen when you say something. When you are speaking in tongues, okay, when you are praying, when you are praising, when you are speaking in tongues, if other person cannot understand, how can they say Amen at the end of the prayer? Only when they understand, they can say Amen. So that here what he's saying, it's not for the public use, it is for the personal use. दूसरा जो बात हम लोग पहला कुरिन्थियों 14 के 14 से लेकर 17 के बीच में पढ़े हैं, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अन्य अन्य भाषा बोलना जो है, ये एक व्यक्ति के उन्नति करने के लिए है। और अगर दूसरा व्यक्ति इस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो आपने जो प्रार्थना किया या प्रार्थना में जो धन्यवाद दिया या अन्य अन्य भाषा में जो भी बोला, अगर दूसरा उसको समझकर आमीन नहीं बोलेगा, तो वो उन्नति का विषय उस व्यक्ति के लिए नहीं हो पाएगा जो उन भाषा को नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए पवित्र आत्मा का जो वरदान है, ये व्यक्तिगत है, और अगर इसका समझाने वाला या बताने वाला नहीं है, तो सामूहिक रूप में अगर दूसरा इस भाषा से उन्नति नहीं कर रहा है, तो फिर हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम पवित्र आत्मा के इस वरदान को व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल करें, और जब सामूहिक रूप में करें तो ये दूसरों की उन्नति के लिए भी होना चाहिए। And in verse 18, he is giving his personal example. He is saying, I speak in tongues, but I keep it for myself. And in verse 19, he says, instead of speaking 10,000 words in different language, it is better I speak 5 words which everybody can understand. Now, problem is solved. He has concluded the matter. Paul has concluded the matter. और 18 और 19 वचन में, पहला कुरिन्थियों 14 के 18 और 19 में पौलुस इस विषय को पूरी तरह से समाधान देने की कोशिश करता है और कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पौलुस भी अन्य भाषा में बोलता है, लेकिन 19 वचन में बोलता है वो पौलुस, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। तो इस बात को कहकर पौलुस इस समस्या का या इस असमंजसता का निराकरण करने की कोशिश करता है। Thank you. Anything? Any? And Ritu, you're also translating very good, clear. Very good. Nice. निधि, आपको क्लियर हुआ तो जस्ट मैसेज कीजिए ठीक है करके, सो दैट थैंक यू। सिस्टर निधि क्लियर है करके मैसेज किया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। और कोई है? हाँ, मेरा एक सवाल है सर। Yes. हेलो। प्लीज। हाँ, 23 वचन पहला अध्याय, प्रेरितों काम पहला अध्याय, उसका 23 वचन से लेकर के आखिरी वचन तक हम देखते हैं इसमें का कि इसमें लिखा है, युस्तुस और मतीहा जो यहूदा इस्करियोती के जगह में चुनाव हुआ, लोग प्रार्थना किया और परमेश्वर के आत्मा के बारे में पूछा कि हम किसको चुने जो आप प्रेरिताई का काम कर सके करके। तो एक चिट्ठी डाला, उसमें है नहीं पत्रियां जो डाली, क्या वो पत्रियां डालना निश्चित है, अच्छा है कि मतलब परमेश्वर से उत्तर लेना या उनके प्रार्थना करके उनके लिए इंतजार करना कि किसको चुने करके, या उसको जो चिट्ठियां डाली है उसके नाम से, है ना, और निकलने के लिए मतीहा के नाम निकला, परंतु चिट्ठी डालना क्या उचित है कि नहीं है? आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? मतलब आज के संदर्भ में अगर किसी भी चीज का निर्णय लेना है तो क्या हम चिट्ठी डाल के ले सकते हैं, ये आप पूछ रहे हैं क्या सर? हाँ जी जी जी, यही है सर मेरा। Sir, brother is asking based on Acts chapter 1 verses 20 onwards, where
It talks about the selection of the 12th disciple, and they put chits, right? They put chits and prayed upon it, and the chit got selected under the name of Matthias. So brother is asking, in today's context also, is it appropriate to put chits and take decision based on chits? So is this process appropriate in today's context? Okay. Thank you. I appreciate you, Kirdas, for the question, because many people have that question these days in their minds. Many people are thinking, can we do that way or like that? So I appreciate Kirdas for that. ब्रदर कीरदास, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और कई लोग हैं जो कई बार इस प्रक्रिया को लेकर अपने जीवन में सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्या हम प्रार्थनाओं के उत्तर को या अपने निर्णयों को चिट लिखकर निकाल सकते हैं। Yes, sir. So in olden days, they used to do, for example, in the book of Jonah, we see when that big storm has happened, they were all finding out who is the reason for this storm, and then the chit fell on Jonah and all that. So पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि योना के पुस्तक में कि जब योना जहाज में था और तूफान आया तो उन्होंने उस समय भी इस प्रकार की प्रक्रिया को किया, उन्होंने चिट निकाला और वो पर्ची योना के नाम पे निकली, है ना। तो पुराने नियम में भी इसी प्रकार की एक घटना को हम पाते हैं। वो अन्य जाति है ना सर। हेलो, उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए, सर को पूरा करने दीजिए। यस सर, लेट मी कंप्लीट। So even in the case of Jesus' clothes, at the time of his crucifixion, they put chits and they distributed his clothing to different people. But now here, what Bible teachers, commentators say, this is the last time that they did, and they never did again in the New Testament to find God's will. और फिर तीसरी बार भी हम देखते हैं एक और जगह में कि जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को बांटे गए तो उस समय भी हम देखते हैं कि लोगों ने पर्ची डालकर उसके वस्त्र को, यीशु के वस्त्र को बांटे। उसके बाद कई बाइबल के ज्ञाता और धर्म वैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये आखिरी बार था जब इस प्रकार से चिट निकालकर या पर्ची निकालकर किसी निर्णय को लिया गया, और उसके बाद पूरे नए नियम में हम इस प्रक्रिया को दोहराते हुए नहीं पाते हैं कहीं भी। Yeah, so what we understand by this is that had happened that time, but is not to be repeated again. तो हम इससे ये समझते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो उस संदर्भ में या उस परिस्थिति में या उस समय में हुआ था, लेकिन फिर इसको दोहराया नहीं गया, या ये प्रक्रिया जो है वापस दोहराने के लिए नहीं है। Yeah, so never in the New Testament they were going for chits to find God's will. There are ways and means how we can know God's will, the will of God. और हम फिर इसके बाद नए नियम में कहीं भी इस बात को नहीं पाते हैं कि चिट निकालकर या पर्ची निकालकर परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की गई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को जानने के अलग तरीके हैं और अलग योजना जो है वो ठहराई गई है। So the Spirit of God will speak through the Word of God. Bible is the basis for us to know God's will, and God will also tell us, through the Spirit, but not this method. और परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र है, वो हमें बताता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके आधार पे हम निर्णयों को ले सकते हैं। कई बार परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करके अपने विचारों को, अपनी योजना को या अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं। तो ये सारे माध्यम हैं जो आज के युग में या वर्तमान की कलीसिया को परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को जानने के लिए दिया गया है, ना कि वापस हम पर्ची निकालने की उस प्रक्रिया में जाएं। Yes, yeah. जी, थैंक यू सर। Yes, ब्रदर, आपका सवाल क्लियर हो गया? हाँ, जी क्लियर हो गया। मैं इसी डाउट में था कि इस तरह से ऐसा क्यों निकालते हैं, है नहीं, पर्चियां का क्या सवाल, जब परमेश्वर की आत्मा बता रहे हैं, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, तो पर्चियां क्यों निकाला गया, ये मेरा सवाल था। ठीक, मैं समझ आ गया जी। और इसका on this you have very much clearly told in the beginning, which I also I liked it very much, that इधर क्या है, they have kept some standards from John the Baptist
till Jesus resurrection, the complete peer, whoever are there, means while selecting people also they selected with a particular standards, and Prabhu ka ichha, from God's will they have chosen. That also once again, because while selecting in church or somewhere, we have to see. That's what I understood in church while selecting elders or pastors or anyone. So these some standards which we have to keep. You can expound. Yes, sir. I think you have mentioned a valid point, and let me translate it. जो ब्रदर विजय ने एक बात और जोड़ी है भाई किरदास के सवाल में, कि जब इन्होंने इसके पहले कि वो पर्ची को निकाले, उन्होंने कुछ नियमों को, है ना, और कुछ मानकों को ठहराया था कि किस प्रकार का व्यक्ति वो 12वां प्रेरित बनेगा, और उन्होंने उसमें से एक शर्त ये भी रखी थी कि वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यीशु मसीह को जानता हो, या यूहन्ना बपतिस्मा देने के समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय तक उस अंतराल में वो रहा हो या उन बातों को जानता हो। तो ऐसे लोगों को कुछ मानकों को लोगों ने तय किया, कुछ शर्तों को तय किया, और जो लोग उन शर्तों में ठीक बैठे, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया, चुनाव किया, और उसके बाद उन दो लोग चुन के आए, और उन दोनों का चुनाव करने के लिए फिर उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को उस चिट निकालने की प्रक्रिया से पूरा किया। तो इसके पहले कि अगर हम कलीसियाओं में निर्णयों को लें या चुनावों को करें, सीखने की बात यह है कि परमेश्वर की अगुवाई में प्राप्त उन मानकों को, उन स्टैंडर्ड्स को हम तय करें, और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरा करें। बहुत बहुत अच्छा। Anna, that is what you have told. I once again. Yes, ma. Yes, agree. Yes. Thank you. So anyone else? If no one is there, I am having few questions for the benefit of the church. अभी first chapter ना, from प्रेरितों का किताब पहले अध्याय से, Acts first chapter, what you said, generally church or believers are having confusions on baptisms also. So that point very clearly we have to see, like before John the Baptist has given with water, and now you will be baptized with Spirit. So people are differentiating, means water baptism is separate and Spirit baptism is separate. So that also, if you expose, give some light on that issue, it will be better, I feel, for the church. Yeah, thank you. So here first, just a minute, sir. Let me put the question first. Yes, yes, good. जो ब्रदर विजय ने जो सवाल मोजेस सर से किया है, वो हम सब के सीखने के लिए और कलीसिया में वचन को बेहतर रीति से सीखने के लिए किया है। हम सब इससे सीख सकते हैं। उनका सवाल ये है कि यूहन्ना के समय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता पानी से बपतिस्मा देता था, और फिर प्रेरितों के काम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम पवित्र आत्मा का, वचन एक का प्रेरितों के काम उसका 1:5 में बोलता है कि थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो क्या दो प्रकार के बपतिस्मे हैं, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, पानी का बपतिस्मा अलग है? ये सवाल ब्रदर विजय ने किया है। यस सर। Yeah. Now I'll give you two explanations for this. I'm reading from a commentary. Please understand. The Greek word baptizo has two meanings. One literal meaning, other one is figurative meaning. Please translate. The Greek word is baptizo. It has two meanings: literal meaning, figurative meaning. Yes. जो शब्द बपतिस्मा है ये एक यूनानी शब्द से आया है, और इस यूनानी शब्द जो ग्रीक में यूज हुआ है उसका शब्द है बैप्टाइजो। ये यूनानी शब्द है, और इस बैप्टाइजो शब्द के दो अर्थ हैं, एक शाब्दिक अर्थ है और एक चित्रित अर्थ है। ठीक है, तो उन दोनों अर्थों को हमको समझना है।
The literal meaning means submerging, putting under the water. That is the literal meaning. Baptizo means putting under the water. तो ये जो यूनानी शब्द है बैप्टाइजो, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ है, उसको हिंदी में इस प्रकार से अर्थ निकाला जा सकता है कि एक किसी को पानी के अंदर डुबाना। And the figurative meaning is to be identified with, to becoming one with. That is the figurative meaning. और जो चित्रित करने वाला जो शब्द है, उसका जो अर्थ है वो ये है एक होना, किसी को एक करना। तो ये दोनों अर्थ हैं इस एक शब्द के। So now let us emphasize on this. When we are accepting the Lord Jesus Christ, we are becoming one with Christ. Christ is the head and we are the part of the body. The church is the part of the body. We are all becoming the part of the church, and we are becoming one with Jesus Christ. That is the meaning of the baptism. तो अब इस शब्द को, इन्हीं दोनों शब्द के साथ में हम लोग बपतिस्मे शब्द का अर्थ समझने का कोशिश करें कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है और हम उसके देह बन जाते हैं, और इस प्रकार से मसीह को ग्रहण करने के बाद हम मसीह के साथ हो जाते हैं और मसीह में हो जाते हैं। Yeah, when we are the baptism of the Spirit means we are accepting the Lord Jesus Christ. We are becoming one with Christ. We are having Him in our hearts, receiving Jesus into our hearts. The Spirit of God comes into our hearts. We became one with Jesus. तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अर्थ ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम उसके साथ एक हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और पवित्र आत्मा का कार्य फिर हमारे जीवन से होता है। तो ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अर्थ को बताता है। So everybody who is becoming a Christian, it is a work of the Spirit of God that is taking place inside our hearts. It is private and personal. Nobody will know what had happened. That is actually the Spirit's work. That is Spirit's baptism. जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जब मसीह को ग्रहण करता है, तो ये एक व्यक्तिगत विषय है और दूसरा कोई भी नहीं जानता है कि उसके मन में क्या हुआ। पवित्र आत्मा उसके मन में कार्य करता है, उसको कायल करता है, और वो अपने जीवन में कायल होकर प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और ये जब होता है तो इसी को बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और इसके विषय में और कोई नहीं जानता है, क्योंकि केवल व्यक्तिगत रूप से वही व्यक्ति जानेगा जिसके जीवन में ये घटना हुई है। So since then the Spirit of God will be dwelling in our hearts. We are sealed with the Spirit of God and we become the children of God. और उसके बाद से पवित्र आत्मा जो है वो उस व्यक्ति के अंदर में रहेगा, उसके साथ साथ रहेगा, उसके अंदर वास करेगा, और पवित्र आत्मा की छाप उस व्यक्ति के ऊपर में हो जाएगी, और वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा। Then we'll go out publicly and we take water baptism, submersion into the water, and we declare to everybody that I became a Christian. और उसके बाद ये होता है कि वही व्यक्ति अपने इस विश्वास को सार्वजनिक रूप में प्रकट करता है, और वो जाकर पानी का बपतिस्मा लेता है, डूब का बपतिस्मा लेता है, और इस बपतिस्मे के द्वारा वो ये प्रकट करता है कि वो मसीह की देह का अंग बन चुका है। Yeah. So this one is private, personal, and another one is public. Yes. तो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो व्यक्तिगत है, और एक व्यक्ति के हृदय में ये कार्य होता है। जो पानी का बपतिस्मा है वो इस विश्वास को प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक रूप में इस विश्वास को प्रकट करने की प्रक्रिया को बताता है। So it is taking place every day in everybody's life. We don't know how it is happening in now today. Millions of people, hundreds of people are coming to know the Christ secretly, and that Spirit of God is working, and that Spirit baptism is taking place in that particular person's life. तो आत्मा का जो बपतिस्मा है वो एक व्यक्ति के अंदर में हर समय होता है, कई बार होता है, और सैकड़ों और करोड़ों लोगों के जीवन में आत्मा का बपतिस्मा जो है वो हो रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। तो रहस्यमय तरीके से
और बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से आत्मा का कार्य जो है और आत्मा का जो बपतिस्मा है वो निरंतर हो रहा है। Yeah, without this experience is taking place, that private personal conviction of sins and all, without this taking place, there is no use of taking public water baptism. That will become a just, bath, no spiritual value. If you तो don't जब have personal experience of salvation, baptism will never help. तो जब तक एक व्यक्ति के अंदर में ये बातें ना हो, उसके मन में पाप के प्रति चेतना ना आए, प्रायश्चित ना आए, और जब तक वो मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना कर ले, तो ये सारी बातें जब तक एक व्यक्ति के जीवन में अगर नहीं होती है और उसके बावजूद वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, सार्वजनिक रूप में जाकर डूब का बपतिस्मा लेता है, तो वो बपतिस्मा नहीं कहलाएगा, वो केवल एक स्नान के तौर पे कहलाएगा। एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप में अगर बपतिस्मा लेना है तो उसके पहले उसके मन में प्रायश्चित होना चाहिए, उद्धार प्राप्त करना चाहिए उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उसके पश्चात वो सार्वजनिक रूप में बपतिस्मे को ले सकता है। Yes, Vijay, anything else? Thank you, Anna. If somebody, किसी को कोई सवाल है इस समय पूछने के लिए याद आया तो पूछ लीजिए। प्रेरितों का किताब पहले अध्याय दूसरे अध्याय से, बहुत विशेष अध्याय, ये दोनों अध्याय मतलब कलीसिया और विश्वासी जीवन में पूछ लीजिए। और एक सवाल है ना, another question is there. Yeah. Thing is that see, the people, Holy Spirit means when they are thinking like Holy Spirit means coming with a power, means like Holy Spirit means we are filling with a power. Okay. People will think that we are filled with power. So will the people's mood or people's physique or face value or something expressions will change, that when the power comes, they will become an abnormal person which they cannot control, something like that? Yeah, thank you, Vijay. That was a good question because Just a these minute, days, yeah, Let yeah, me you take please go ahead. Yeah. विजय ब्रदर ने ये सवाल पूछा है कि हम सब सुन रहे हैं कि पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ उतरता है। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर में ये सामर्थ उतरता है पवित्र आत्मा का, तो क्या उसका हाव भाव, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति एकदम बदल जाती है और उस सामर्थ को पाने के कारण वो व्यक्ति बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा अपने आप को, वो अपना नियंत्रण खो देगा। क्या ऐसा होगा अगर पवित्र आत्मा आता है? यस सर। Yeah. So many people have this question, but the fact is, as I said, filling of the Spirit is first personal, private, that takes place in the heart, one's heart. First thing is conviction of sin, that I'm a sinner, I need a savior and all that. It is happening inside the heart. तो पवित्र आत्मा के विषय में ये कई लोगों का सवाल है, और जैसा मैं पहले भी बताया हूं, अभी भी बताना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति जब भरता है, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर में आता है तो वो बहुत ही एक व्यक्तिगत अनुभव होता है, और उस व्यक्तिगत अनुभव में पवित्र आत्मा जो है उस व्यक्ति के मन को उसके पाप के विषय में कायल करता है। उसके मन में एक पश्चाताप की भावना आती है। ये होता है आरंभिक चिन्ह पवित्र आत्मा के आने का। यस। Yeah. So once that takes place, that one change will happen. That change is transformation, which we call, for example, if I was a very angry person earlier, if I was a very rude person, very cruel and all, now I become very soft, very gentle, which are the characteristics of the Lord Jesus Christ. So that transformation of life character will change place. Suppose earlier I was addicted to alcohol, smoking and all bad habits, sinful activities. Now there is a transformation, change of all those characters and qualities. तो जब पवित्र आत्मा इस प्रकार से एक व्यक्ति के मन में आएगा और उसको कायल करेगा, तो एक प्रकार का परिवर्तन जो है वो जरूर उस व्यक्ति के अंदर में आएगा, और वो ये है कि वो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बदलेगा। जैसे पहले वो क्रोध करता था,
या मारपीट करने वाला व्यक्ति था या नशा करने वाला व्यक्ति था, तो इस प्रकार का जो उसका चरित्र था वो चरित्र में बदलाव आएगा और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद में उसका चरित्र जो है वो यीशु मसीह के चरित्र के समान ढलता जाएगा। तो ये एक परिवर्तन जो कि उसके चरित्र में और उसके स्वभाव में है वो जरूर आएगा जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आएगा। So that is the kind of transformation that takes place when we are filled with the Spirit, not any external thing which Vijay has been. Because, for example, if I am a black man, I'll become a white man, or if I am a soft, gentle person, I'll become all gut. But that sort of things, nothing will happen when you are filled with the Spirit of God. That sort of things are quite not there, quite unnecessary. No external changes, no body changes, and all that will not take place. You are just the same person, but inside heart. Transformation, character, that change will be there. तो अन्य किसी प्रकार के बदलाव के विषय में मैं नहीं समझता हूं कि होगा। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए अगर वो रंग में काला है और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया तो वो सफेद दिखने लगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति अचानक से कुछ कुछ बोलने लगेगा और बड़बड़ाने लगेगा और अपना आपा खोने लगेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी। जो होगा वो ये है कि एक व्यक्ति के मन में पवित्र आत्मा का कार्य होगा, उसका मन कायल होगा, उसका मन परिवर्तन होगा और जो उसके चरित्र में बुरी बातें थी उससे उसके जीवन में बदलाव आएगा। थैंक यू। थैंक यू अन्ना, थैंक यू। सिस्टर निधि, हमारे पास खाली 20 मिनट है, 20 मिनट्स इज देयर, सो आई विल क्विकली। सिस्टर निधि का सवाल यही है, क्या अन्य भाषा होली स्पिरिट का साइन है, ब्रदर? Yes, I got. Sister Nidhi is asking a question that whether speaking in tongues is a sign of Holy Spirit. No, because see, historically we need to understand. First, in second chapter, when the Israelites, Jews received, it had happened. Second, in 10th chapter, Gentiles received the Holy Spirit, it happened. It was only for the historical context, not to happen every day and every time even now. No. तो जब हम वचन के आधार पे इस चीज को देखेंगे कि जब पहली बार पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त में के दिन में यहूदियों के ऊपर में उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरी बार हम देखते हैं जब सामरिया में पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा तो वो अन्य भाषा में बोलने लगे। ये ऐतिहासिक रूप में हुआ। जरूरी नहीं है कि हर बार जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे तो लोग अन्य भाषा बोले। However, if the Spirit of God gives you individually, personally, that gift, as we said in 1 Corinthians, it is up to you to have it. You can exercise it. You can speak personally when you're praying to God, and all that can happen. It is between you and your God. लेकिन जब पवित्र आत्मा मान लीजिए आपके ऊपर में उतरता है या किसी एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को अन्य भाषा बोलने का वरदान देता है तो वो व्यक्ति इस वरदान का अभ्यास कर सकता है व्यक्तिगत रूप में अपनी प्रार्थनाओं में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। तो ये पवित्र आत्मा का एक विशेष वरदान होता है जो विशेष लोगों को दिया जाता है या कुछ लोगों को दिया जाता है। Yeah, for example, there is a great leader in our India by name of R. Stanley, who is the leader of Blessing Youth Mission. He speaks that I speak in tongues personally, privately in my prayer, personal prayer. उदाहरण के तौर पे आर स्टैनली एक बहुत ही प्रसिद्ध परमेश्वर के दास हैं और वो भी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जब वो अन्य भाषा बोलते हैं तो वो भी व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं, अकेले में बोलते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में बोलते हैं। थैंक यू सर। मेरा एक और सवाल है। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, उसी समय वचन के समय में एक बहन के ऊपर में पवित्र आत्मा आया और वो अन्य भाषा उसी बीच में बोलने लगा। तो जो प्रचार में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रहे थे तो मैंने उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, प्रभु मेरी आत्मा संयम की आत्मा है, आप शांत करिए करके, और वो सारा की पवित्र आत्मा था, हाथ रखना उसमें वो शांत हो गया। क्या मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ किया? Brother is asking one question that one day while he was preaching, one sister from the congregation started speaking in tongues.
So I was not able to concentrate on my preaching, so I went and laid my hand upon the sister, and I prayed that, Lord, the Spirit, Holy Spirit is a spirit of discipline. So I prayed for that sister, and that sister uh, stopped speaking in tongues. So now his question is, did I do anything wrong while limiting the work of Holy Spirit on that sister? No, what you have done is right. That is biblical. But in the Bible, it says the Spirit is spirit of order. That is a system. It's not confusion. It's not chaos. So definitely, what you did is right. I think that's right. I'm really sorry. I don't know how to say that. Some people we don't know whether when they're doing like that, whether it is really from the Spirit of God or not. We don't know. Sometimes we have to be careful. तो ब्रदर कीरदास जी, आपने जो किया वो पूर्णतः बाइबल के आधार पे है, क्योंकि वचन बोलता है पवित्र आत्मा जो है वो संयम का और नियंत्रण का आत्मा है। तो मैं नहीं जानता क्यों इस प्रकार से लोग अचानक से सभाओं में अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं, कैसे बोलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो अनुशासन की आत्मा है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपने जो किया है वो बाइबल के आधार पे सही है। थैंक यू, थैंक्स। We have Sai Kumar. I think is he from Lucknow? Yes. Yeah. Okay, good. Go ahead. If किसी को और एक सवाल नहीं है तो आखिरी just I will take one question. I have one question, so maybe after you I can take. No, you can go ahead. Ritu Saxena. Yeah, go ahead. Yeah, actually, sir, she is my wife. I am Saurabh here. I'm using her mobile. Oh, is it? Saurabh. Name? Yeah, Ritu. Yeah, name is different. Okay, right. It in English also. मेरा सवाल ये है कि जैसा ब्रदर विजय जी ने पूछा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में और पानी के बपतिस्मे के विषय में, और जो सर का उत्तर उसमें था कि एक व्यक्ति जब अपने मन में पहले पवित्र आत्मा के द्वारा कायल होता है, वो होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसमें वो अपने पापों को अंगीकार करता है, प्रायश्चित करता है और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और उसके बाद फिर वो व्यक्ति क्या करता है, अपने विश्वास को, अपने इस पाए हुए उद्धार को जो आत्मा के द्वारा उसने पाया, उसको वो सार्वजनिक रूप में प्रकट करता है और पानी का बपतिस्मा लेता है। तो मेरा सवाल ये है कि उस पानी के मतलब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद, अपने पापों से प्रायश्चित करने के बाद, सार्वजनिक रूप में भी बपतिस्मा लेने के बाद जब फिर पाप आता है, तो आत्मा के बपतिस्मे के विषय में और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में क्या? My question is, once a person, as you said, baptism of spirit and water baptism, both the things you have mentioned and the aspects related to it. Suppose a person is baptized through spirit, he is convicted and he is confessed and he has received the salvation. After that, he is putting that faith into public by taking water baptism. Now, after water baptism, again the person gets into a sinful life or in sin. Then what is the validity of water baptism of spirit and then baptism through water? Or there are certain people who say that since we are going to continue in this earth, then definitely we will be committing sin. Then we should stop ourselves from taking water baptism. So there is some clarity I need. Yeah, I will read from Bible again. Bible answer is always better. First letter of John, 1 John 1:9. 1 John, first John, first letter, first chapter, verse 9. You only please read. पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
See here, let me tell you two things. The letter is written by John, who is an apostle, who was with Jesus Christ. He was a disciple. And the letter is written to believers. They're all born again believers. Okay, keep this in mind. And then he is saying, if we confess our sins, if we confess, a believer writing to another believer saying, if we confess, that means there is a possibility that we all believers, so for example, all of us are believers and pastors here. All of us as pastors, there is a possibility that we sin again. We sin as long as we are in this world, in this flesh, okay, in this flesh body, we sin. Yeah. यूहन्ना की पत्री में जो पढ़ा गया उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, ये यूहन्ना जिसने इस पत्री को लिखा है वो एक प्रेरित है, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। दूसरा, ये पत्री जो है वो यूहन्ना विश्वासियों के समूह में लिखता है। तो एक विश्वासी विश्वासियों को लिख रहा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, इसका मतलब ये है कि एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी पाप करने की दशा में पड़ सकता है। और जब तक हम इस शरीर में हैं, शारीरिक जीवन को इस संसार में बिता रहे हैं, वचन इस बात को बताता है कि पाप हमारे जीवन में आ सकता है या आएगा। Yeah, so now when we sin, we have a facility to confess it again. When we confess it, the Lord is faithful. He will cleanse us, He will make us clean again, and He will help us to keep going in our spiritual life. That means there is a possibility that we sin. When we sin, there is again a facility that God will cleanse us again. God will accept. Okay, we are His children. Children will always do many mistakes. Parents will always forgive them and cleanse them, and they will accept it. Same thing is true even in our spiritual relation. Okay? तो हम देखते हैं कि इस वचन के आधार पे हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम संसार में होंगे तो हम पाप कर बैठेंगे या पाप की प्रभुता हमारे ऊपर में रहेगी। लेकिन इस वचन के आधार पे हमें जो आश्वासन प्राप्त होता है वो ये है कि पाप करने के बावजूद, एक नए जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी के पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने एक उपाय कर रखा है कि वो व्यक्ति जिसने नया जन्म प्राप्त किया है, अगर वो पाप कर दे तो जब वो अपने पापों को मान लेगा तो परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करने के लिए भी उपाय रखा है। परमेश्वर उसके पापों को माफ करके उसे वापस शुद्ध करने की एक योजना को बना के रखा है ना। कई बार परिवार में बच्चे भी गलती कर बैठते हैं और माता पिता क्या करते हैं, उन गलतियों को माफ करके उस बच्चे को वापस परिवार का हिस्सा बनाते हैं, उसको वापस अपने साथ मिलाकर रखते हैं, उसे छोड़ नहीं देते हैं, उसे अलग नहीं कर देते हैं। ठीक यही संबंध हमारा आत्मिक जीवन का संबंध भी परमेश्वर के साथ में है कि जब हम पाप कर बैठते हैं तो परमेश्वर ने उस पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए उपाय करके रखा है और वो फिर से हमें शुद्ध करने के लिए भी तैयार है। Yeah, so we have to take baptism and we should keep going in life. That doesn't mean that we can always sin and we cannot take it as a license to sin. But because we are human beings, there are weaknesses. We may fall in sin, but God will always accept us. Thank you. तो इसीलिए हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेना इस बात को नहीं दर्शाता है कि हम पाप कर सकते हैं, ये हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं देता है, लेकिन बपतिस्मा लेने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद अगर पाप आ भी जाते हैं तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है ताकि हम आगे पाप ना करें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। Thank you. Yes, sir. Thank you. Anna, for this, can we, what brother has asked and what you have told, can we also refer to this, what Paul has said in Romans 6:1-4? Yes, Amma, sure. They are relevant. That is relevant, right? Yeah, Romans 6. Romans 6:1-4. Yeah. रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 1 से लेकर 4 वचन। You want me to read, brother? Yeah, you can read. Please. Okay. जो सवाल मैंने पूछा था उसी के संदर्भ में इस आयत को भी हम पढ़ लेते हैं। रोमियो 6:1 से 4। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे
को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ठीक है ना Yeah, brother? very relevant. See, God will forgive us. That doesn't mean that we should continue in sin. No, we should not take it as a license to continue. We need to be very careful, extra careful. We need to be fearful in maintaining our spirituality and purity. तो परमेश्वर निश्चय ही हमारे पापों को क्षमा करेगा, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन बपतिस्मा ले लेने से पाप करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। ये हमें आजादी नहीं देता है कि हम बपतिस्मा ले लिए हैं तो हम पाप भी कर सकते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद हम और भी जिम्मेदार हो जाते हैं और अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के भय में बिताने लगते हैं। Okay brother? यस, थैंक यू। Now, time has been finished, but last one question, as I told. This is means like a small question, which generally people might think. From same Acts, first chapter, Jesus has been spent 40 days. 40 days with disciples. So whether after resurrection he came and he spent 40 days with disciples. So 40 days he has spent with them. Whether he has with the same flesh or this is generalized same flesh, and means he ate, he slept, he's there with them. So how his body, flesh, and what is his? Yeah, yes. So that's a good question. There is one difference. There is one more body which Jesus has transformed, which we call it glorified body. Okay, body of glorification, which is given later. So once that is given, that doesn't have any shape. That glorification body will not have any shape. It is like the spirit. But here, after the Lord Jesus, he was in like the same body, because the people could see his marks of the cross. So he was asking, doubting Thomas, put your finger here. So he was having the same body, but the body which came back from life, came back from dead to life. But this body is different, and the body of glorification is different. We can say same flesh. सर, विजय ब्रदर का सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो 40 दिन तक चेलों के साथ रहे, लोगों को दिखे। तो ये 40 दिन के दौरान प्रभु यीशु मसीह खाए, विश्राम किए और अन्य प्रकार की हरकतों को अपने शरीर के द्वारा किए। तो सवाल ये है कि क्या ये जो शरीर प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद प्राप्त किया, वो किस प्रकार का शरीर था? तो जो उत्तर है वो इस प्रकार से है कि वचन जो है वो एक महिमा रूपी देह के विषय में बात करता है, और वो महिमा रूपी जो देह है, वो देह को प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद प्राप्त नहीं किया है। उस देह को प्रभु यीशु मसीह प्राप्त करेंगे, और उस देह को जो वचन में लिखा है महिमा रूपी देह, वो बाद में दिया जाएगा। लेकिन पुनरुत्थान के बाद जरूर प्रभु यीशु मसीह चेलों को सामने दिखाई दिए, और जब वो चेलों के पास में आए तो चेलों ने और लोगों ने उनके हाथों के पांव के कीलों के छेद को, दागों को देखा। और योना से भी कहा गया, थोमा से भी कहा गया कि अपने उंगली को उस हाथ में प्रभु यीशु मसीह के जहां कील लगा था वहां पे डाल के देखने के लिए, ताकि उसका संदेह दूर हो सके। तो इस प्रकार की जब घटनाओं को हम देखते हैं तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसी देह में पुनरुत्थित हुए थे, जीवित हुए थे, लेकिन ये देह जो है ये पुनरुत्थान के बाद का देह है। But we also need to understand that when the doors were closed, he came through the doors. So if we have the same like body like this, how can come through the doors and through the walls? So there is another question like that.
तो एक और सवाल फिर ये आएगा कि अगर उसी देह में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, तो एक बार जब चेले कमरे में बंद थे, तो प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे में से कमरे के अंदर में प्रवेश कर गए थे। तो सवाल ये होगा कि अगर वही देह था तो फिर प्रभु यीशु मसीह कैसे बंद दरवाजे में से अंदर प्रवेश कर गए? So that tells us that will speak to us that Jesus had a different power after the resurrection, even to come through the doors or even fly, be in different places. Okay, so that we need to understand. It's a resurrected body, not glorified body. तो यहाँ पे इसका उत्तर इस प्रकार से हमको समझना होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो उस पुनरुत्थित देह में प्रभु यीशु मसीह की एक विशेष प्रकार की सामर्थ को हम देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में था, जिस सामर्थ में स्थान या वस्तुएं जो है वो बाधक नहीं थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे में से प्रवेश कर गए। एक ही समय में वो विभिन्न स्थानों में लोगों को दिखाई दिए। तो ये एक विशेष प्रकार की सामर्थ है जो पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह को अपनी देह में प्राप्त हुआ। लेकिन ये देह महिमा रूपी देह नहीं है। Yeah, and again we also need to understand the rolling away of the stone at the tomb of Jesus Christ. It was not to help Jesus to come out. Even if the stone was there, Jesus can come out. He is a resurrected body. If the stone was rolled away so that you and I can go and see inside that he is not there. The roll was rolled away, stone, for our sake, not for Jesus' sake. और एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो हम जानते हैं उस घटना के दौरान कब्र का पत्थर लुढ़क गया, उसको लुढ़का दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पत्थर नहीं लुढ़का होता, तो पत्थर नहीं हटा होता, तो प्रभु यीशु मसीह बाहर नहीं आ पाते। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए पत्थर को नहीं हटाया गया। पत्थर इसीलिए हटाया गया ताकि मैं और आप इस बात को विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। ये हमारे विश्वास की मजबूती के लिए है। So the conclusion for Vijay's question is, during those 40 days, Jesus had a resurrected body which has power but not the glorified body. तो जो उत्तर या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं वो ये है कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह की देह जो है वो पुनरुत्थित देह थी, जिसमें एक विशेष प्रकार की सामर्थ थी। लेकिन ये देह जो महिमा रूपी देह है, वो देह नहीं थी। Right. I think we'll close. Yes, brother. Yes. Somebody can pray and close. Yeah. So I think प्रभु सहायता किया अभी तक। हर एक सवाल, मैक्सिमम डॉक्ट्रिनल सवाल क्लियर होने के लिए प्रभु सहायता किया। सो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग शेयर कीजिए। मैं सवाल भी उसको नीचे लिख के रखूंगा। शेयर करने का समय आप लोग कलीसिया को उपयोगित कीजिए। सो थैंक यू। किरदास ब्रदर, आप आखिरी प्रार्थना कीजिए, आखिरी प्रार्थना और आशीष दीजिए। किरदास ब्रदर। जी सर, जी। धन्यवाद 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 देता हूँ स्वामी, आपका नाम का तारीफ बड़ाई करता हूँ पिता। तुम महान और पवित्र खुदावन, जय जयकार करते हुए आपके चरणों तले आते हैं प्रभु जी। और आज के इस परमेश्वर पिता सवाल जवाब प्रश्न उत्तर में खुदावन हम सबको लाया प्रभु, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। आपके पवित्र आत्मा हमारे बीच में था खुदावन। और परमेश्वर पिता जो डाउट था प्रभु जी, और परमेश्वर पिता आपके दोनों दास के द्वारा परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु, अंकल के द्वारा और परमेश्वर पिता भाई सौरभ के द्वारा आपने परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु, ट्रांसलेट में और परमेश्वर उत्तर देने में अंकल को सहायता और मदद किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। आज के परमेश्वर पिता सवाल परमेश्वर पिता और जवाब परमेश्वर हम सब के लिए एक आशीष का कारण हुआ प्रभु। और निरंतर परमेश्वर पिता ऐसे परमेश्वर पिता आत्मिक शिक्षा पाते रहें, बढ़ते रहें खुदावन, और प्रार्थना में लगे रहें प्रभु जी, ताकि हम परमेश्वर पिता अच्छे रीति से एक चेला बन करके खुदावन
और परमेश्वर पिता आपके चरणों में बैठ करके सीख सके प्रभु, और वो हमारी आत्मिक उन्नति के कारण हो और हमारे सेवकाई जीवन में वो एक लाभदायक हो परमेश्वर पिता। और जिस किसी भाई बहन के पास जाते हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता उस सामर्थ्य को पा करके जाते हैं खुदावन, तो आत्मा भी बचने के कारण हो जाए। ऐसे सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि कोई भी प्रश्न करते हैं तो हम भी परमेश्वर पिता, हम जितना भाई बहन इसमें जुड़ करके सुन रहे हैं प्रभु, वो सही सही उत्तर देने के लिए हम सब सीख सके प्रभु, और उत्तर देने आ जाए। ऐसे परमेश्वर पिता हमें सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद देता हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक अगुवाई किया और आप हम सबसे बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके दोनों दास के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। और भी परमेश्वर पिता सामर्थ्य से भर, और भी परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु वचन का सीख दे प्रभु, ताकि बहुतों लोगों को सिखा सके, बता सके, और परमेश्वर पिता सही शिक्षा दे करके वो ये कर सके प्रभु जी, सही मार्ग दिखा सके खुदा। धन्यवाद देता हूँ पिता अंकल के लिए, धन्यवाद देता हूँ भाई सौरभ के लिए, धन्यवाद देता हूँ खुदावंत आपके दास ब्रदर विजय चंद्रन के लिए, और जितना भाई बहन जुड़े हैं उन सब के लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सबके संग साथ हो, आशीष दे। और जैसे आज हमने सवाल जवाब किया खुदावंत, फिर से परमेश्वर पिता हम परमेश्वर बाइबल अध्ययन में लग जाए, ताकि परमेश्वर अच्छा से परम आत्मा के अगुवाई में हम सीख सके प्रभु। ऐसे सहायता और मदद कर। आज के सवाल जवाब कार्यक्रम को और हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए सारे बातों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने हम सबसे बातचीत किया, धन्यवाद के साथ प्रार्थना में उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ युगान युग यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। थैंक यू ब्रदर। अगले हफ्ते आप लोगों का दोस्त और परिवार और कलीसिया लोगों को बुलाइए शामिल होने के लिए, उनको आप आशीष पाए, ठीक है ना। थैंक यू, गुड नाइट, प्रेज सबको लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर योर invitation. Thank you so much, sir. God bless you. Thank you, Anna. Glad to see you. Thank you, brother. Welcome, Anna. Thank you.